during the break time, we did observe the umpire having a word with Akhil Akineni to speed up the overs. It's pretty important. So, huge bowling, just the way everyone has bowled there. And Akhil Akineni has marshalled resources well. That also tells us that Telugu Warriors is a team of all-rounders, which would make Kerala Strikers' task that much more difficult. बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है तेलुगु का. फील्डिंग बहुत अच्छी रही है. एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस अभी तक रही है और अभी 2 विकेट लेकर वो गेम में वापस आ गए. और यहां पर ओह, another lapse. Is pressure showing on them? Not able to hold the ball in their clasp. Watch it again. Miscuing straight into the hands, like catching practice, but just the way the previous run out was missed, until and unless the catch is taken, it's never a catch. लगता है थोड़ी नजर लग गई है इनकी फील्डिंग को. हम तारीफ कर रहे हैं इनके फील्डिंग एफर्ट की. और यहां पर पिल्ले 57 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उठा दिया है मिड विकेट दशा में. 6 रन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 6. जब तक पिल्ले हैं तब तक तेलुगु पे बहुत प्रेशर है. पिल्ले का विकेट लेना बहुत जरूरी है इस समय, लेकिन पिल्ले के इरादे कुछ और ही. A true cricketing shot. Waited for that delivery from Ashwin and pulling it high over mid wicket. No problems at all, dispatching it into the stands. Great shot, and many more required for Kerala Strikers to cross the 150 barrier. Looks like another boundary. So boost is the secret of Pillai's energy. Boost is the secret of Pillai energy, rightly said. और इंपॉर्टेंट रन इस समय आ रहे हैं. प्रेशर तेलुगु वॉरियर पर पड़ता हुआ, क्योंकि 150 रन अगर हो जाते हैं तो बैटिंग आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, आपको वो बनाने पड़ेंगे. और ये भाग्यशाली रहे, लेकिन 4 रन, इंपॉर्टेंट 4 इस समय. फिर पिल्ले के बैट से बॉलर बहुत ही निराश. Almost played on Pillai. This time going in for a mighty heave. He'll go for everything and anything, as we said, and rightly so, because after this delivery only about 12, so 13 balls to go. In 13, if you take 2 runs a delivery, he'll about 26, so 150 is on the cards if Pillai stays. और बहुत अच्छा टोटल होगा, 150 रन इस विकेट पर, जहां पर बॉल इतनी तेजी से नहीं आ रहा है. थोड़ा स्लोनेस है विकेट में, और तेलुगु वॉरियर के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है. लेकिन अबे, और फिर पैरों का इस्तेमाल किया. 2 रन लेना चाहते हैं. अरे ओहो, ड्रामा 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 सीसीएल में. कोई जरूरत नहीं थी इसकी. बहुत ही निराश होंगे पिल्ले. It's nothing short of a suicide there. Rahman and Pillai, they could have guided Kerala to safety. And just see how you can snatch your dismissal from a safe position. No run at all. The bowler firmly in control, had all the time in the world to pick up the ball, go to the stumps and not miss it. So poor running between the wickets. Shafiq Rahman run out for 2, and Kerala Strikers 130 for 7. दो ओवर शेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 ओवर. दोनों टीम्स के पर्सपेक्टिव से बाला आए हैं बल्लेबाजी के लिए. खेलना चाहते थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन पूरी तरह बॉल को मिस किया. और अब आपको लेके जाएंगे पॉपी के पास. Mr. Roy Kurian with me, who's the Vice President, Sales and Marketing, Yamaha Motor India. Very warm welcome, sir. Please tell us about your association with CCL6. Well, Yamaha is known for its bikes among all the bad boys, right? So recently we got into scooters 3 years back, and now we have a product which is Fascino. It's a fashionable scooter, and there's no better opportunity than this, where you can get associated with all the fashionable people out here.
and that's how we chose this, because we are already associated with Miss Divas, Miss Universe, and the fashion world, and since celebrities are involved here, so we thought this is the right connect, and we have chosen this as a. This Fascino is also targeted at the youth audience, isn't it? Yeah, basically for all youngsters, boys and girls, and you can see like this been almost 5 to 6 months only, and see the kind of vehicles we see on the road, and it's been very popular among the youngsters in recent times, and I think in future coming time we'll see more and more Fascinos on road. That's what we see, and we are taking Fascino to a next level, that is aspirational level, by getting associated with this kind of aspirational value-added programs and events, and which will take Fascino to next level is what we think. So that's what we are thinking of doing. One last question. Which is your favorite team in CCL? Basically, yeah, I'm seeing this Telugu team playing very well, and I'm from Kerala, so I'm seeing like, oh, this Telugu team is fantastic. They are doing a wonderful and fantastic job. So I look at this team as a very powerful team. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you, and back to you guys. Another massive six. Thanks, Bobby. And Yamaha Fascino. That was a fascinating shot. हो आज तो पिल्ले ने आग ही लगा दी है पूरे चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। बेहतरीन शॉट, कदमों का इस्तेमाल और बॉल सीधा फेंस पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे हैं पिल्ले यहाँ पर, और हम बात करते हैं अच्छे अंत की, तो मुझे लगता है केरला जब तक पिल्ले हैं एक अच्छे अंत को एक्सपेक्ट कर सकती है। 74 of just 55, gets his 75th run, wants the second run, slips a bit, but I think it will be pretty safe because the throw is pretty wide. So already 9 runs from this over. 10 has to be the minimum target. हम बात कर रहे थे 150 की, लेकिन यहाँ पर लग रहा है शायद 160, 162 रन भी बन सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा टोटल होगा। आनंद उठाते हुए सब यहाँ पर इस मैच का। CCL Superfan, you can call 5333-599 and win 1 lakh rupee cash. At the same time, the Kerala dugout is looking a bit visibly happy after a long time, which was not the scene after the 13th over. But once Rajiv Pillai started striking the ball, things looked different for Kerala strikers, and he has delivered it. Looking a bit tired, 78 of 57. काफी ह्यूमिडिटी है और काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं पिल्ले। थकावट उनके चेहरे पर नजर आ रही है, लेकिन माइंड नहीं थकना चाहिए। जैसे कहते हैं क्रिकेट में, उनका आखिरी तक खेलना बहुत ही जरूरी। अगर वो आखिरी ओवर तक खेलते हैं तो यहाँ से 160, 165 रन भी बन सकते हैं। The Kerala dugout, neither happy nor unhappy, but at the same time, some sort of a happiness has been restored in the dugout after the 14th over, thanks to Pillai, 78 of 57. Bala need to necessarily stay for the next 7 deliveries so that 160 barrier can be crossed. On his follow through, could have tried that at the end of over number 19. Kerala strikers 7 for 141. बाले क्राउड यहाँ पर पूरा आनंद लेता हुआ इस मैच का। केरला स्ट्राइकर्स साझेदारी की अगर हम बात करते हैं तो पिल्ले शुरू से खेलते आ रहे हैं। मुझे लगता है अच्छे बैटिंग लाइनअप की ये बहुत बड़ी निशानी है। जो बैट्समैन क्रीज पर खड़ा है वो अंत तक खेले, और यहाँ पे देखिए पिल्ले हर साझेदारी में मौजूद। Just the way Manish Pandey guided India to victory with a century, 104 not out, Pillai is playing a similar role. Nevertheless, there was a 99 from Rohit Sharma, which was not there in the Kerala striker score. Nevertheless, a respectable total of 141. We have a match on the cards. बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर इस समय। CCL सुपर फैन कॉल 5333-599 win 1 lakh cash today. Just answer one question. CCL का जुनून पूरी तरह भारत में सर चढ़ कर बोल रहा है, और आखिरी ओवर डालेंगे। Adarsh will be bowling the last over, which could probably tell us the final story of the match.
picks up a single of the first ball, allowing Pillai to garner the strike. Right thinking. बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पिल्ले वापस स्ट्राइक पर आ गए हैं और पिल्ले चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बॉलें इस ओवर में वो खुद खेलें, और वो जरूरी भी है क्योंकि जो डैमेज पिल्ले कर सकते हैं इस समय, बहुत देर से खेल रहे हैं, उनको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा। पिल्ले के क्या इरादे हैं? Missing the line. Good bowling and gone. Akhil Akineni having the final laugh, and this over could be crucial. So Kerala strikers now, when they come on to bowl, will have to pick wickets at regular intervals. Raju Pillai gone. बहुत ही बड़ा विकेट पिल्ले के रूप में। जिस तरह वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उनका आउट होना जरूर एक राहत होगी तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवनेस दिखाई अखिल ने, बड़ी अच्छी कीपिंग की अभी तक पूरे मैच में। An intelligent bowling by Adarsh. He saw Rajiv moving slightly to the left, pitched it on the little right, beyond the reach of Raju Pillai. Great innings comes to an end. Raju Pillai run out 78. Kerala strikers 142 for 8. Another wicket. So bowling wides and get run outs. अरे अरे अरे, ऑल हैपनिंग हियर। बहुत अच्छी कीपिंग अखिल के द्वारा। लगता है थोड़े चोटिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने डैमेज तो कर दिया है। बेहतरीन रन आउट। आसान नहीं होता डायरेक्ट हिट मारना, आपको अपना ग्लव्स को उतारना पड़ता है, उसके बाद बॉल को थ्रो करना पड़ता है, लेकिन अखिल जिस तरह ये कर रहे हैं बहुत ही काबिले तारीफ। बहुत ही प्रैक्टिस किया होगा अखिल ने during the nets. That shows very clearly, pretty far and back to back. He has done it twice. It's a great achievement by Akhil Akineni. केरला कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स खो चुकी है। It's been a great final over. Just 2 runs from the over, one in the form of a wide, and 2 wickets has fallen. So will this over be the difference between the two teams? Time will tell, but nevertheless it will not be an easy task to surmount 140 plus in any T20 encounter. May not be difficult, but at the same time it will not be easy too. Manikuttan, the right man to be on strike. 2 dot deliveries. 144 रन, हर रन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 2 बॉल शेष। कोशिश होगी इस समय केरला की कि 2 छक्के जड़े जाएं और स्कोर को 156 पे ले जाया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है। Smart fielding, quite content to give away the single, no problems at all. So if a sixer is scored of the final ball, then the guess of 150, that would boost the confidence of the Kerala strikers team. But Adarsh has just given away 4 runs in his over. The question, the demand was for a 6, but they'll have to remain content. Taking the 3rd run, and the throw coming at the wrong end, and this time Akhil Akineni will not get the 10th wicket. So 20 overs gone. Kerala strikers, the way they were playing at the end of 12th over, finally have done well. A fighting total, if not a winning total, 148 for 9. बहुत अच्छी बल्लेबाजी केरला के द्वारा, उसका श्रेय जाता है पिल्ले को। जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की बहुत ही सराहनीय, और सबसे अच्छी बात थी अंत तक खेले। यहाँ पर तारीफ करनी होगी तेलुगु वॉरियर्स की भी, क्योंकि एक समय लग रहा था शायद स्कोर 160-70 बन सकता है, लेकिन जिस तरह आखिरी 2 ओवर डाले तेलुगु वॉरियर्स ने, सराहनीय। अपने एफर्ट से खुश होगी तेलुगु। और अब वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं, कैसे इस टोटल को गन डाउन करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
So Telugu Warriors with 148 for 9. और ये बॉलिंग कार्ड, रघु ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, प्रिंस ने अच्छी बॉलिंग की, जोशी ने 4 ओवर में महज 22 रन दिए और 2 विकेट लिए। अच्छी बॉलिंग कार्ड, और इसका श्रेय मुझे लगता है कि फील्डिंग को बहुत जाता है कि अगर बॉलर्स को अच्छी सपोर्ट मिलती है फील्डिंग के द्वारा तो ऐसे एनालिसिस होते हैं। 8 bowlers tried, which means that shows the bench strength of Telugu Warriors. So the target required to win this match. केरला स्ट्राइकर्स किसी ना किसी तरह एक लक्ष्य दिया है और मुझे लगता है चुनौती रहेगी सिद्धार्थ, क्योंकि ये लक्ष्य दबाव रहता है, 1-2 विकेट आप खो दे, क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। पर आप ज्योतिष बन चुके हैं, आपने एक प्रेडिक्शन करी थी कि केरला मैक्स टू मैक्स 140 और 145 के बीच में रहेगी, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। तो ये क्या है, ये कोई फ्यूचरिस्टिक बॉल को देखकर आप बोलते हैं, हाथों को पढ़ के बोलते हैं, राज क्या है ये? सिद्धार्थ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि राजीव पिल्ले बने रहे तो फिर स्कोर ये हो सकता है। राजीव पिल्ले में क्षमता है और मैंने इनको काफी सीजन देखा है, ये इस बैटिंग लाइनअप के स्तंभ है और एक बार ये रुक जाते हैं फिर इनको रोकना बहुत कठिन है। And what a journey, yaar, from a dentist to a actor to a cricketer, 78 runs not out. अगर वो honestly उनको और सपोर्ट मिला होता, he might have accelerated earlier as well. बिल्कुल, और हालांकि अगर आप देखें जो शॉट्स लगे, जो सुपर फोर्स लगे, देखिए किस प्रकार शॉट लगाए और राजीव पिल्ले और नंद किशोर के बीच में जो साझेदारी थी वो बहुत बढ़िया थी। ये गेंदबाजी ऐसी है कि ज्यादा रूम नहीं दिया, पर ये जो अर्शतक है मुझे लगता है बहुत अहम, और जिस प्रकार ये अर्शतक लगाया, जिस प्रेशर में अर्शतक लगाया, उसकी दाद देनी होगी। Absolutely, पर मैं अभी भी कहता हूं कि बाजी तेलुगु के हाथों में है, क्योंकि 148 उनके हिसाब से बहुत बड़ा टारगेट नहीं होने वाला है। हम लोग ने देखा है कि पिछले मैच में 222 तक पहुंच गई थी मुंबई वाली टीम, तो 148 इज नॉट अ ग्रेट टारगेट, क्योंकि रन रेट उनको चाहिए 7.5 या 8 मैक्स, जो T20 के फॉर्मेट में ज्यादा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, और तेलुगु वॉरियर्स के पास वो क्षमता है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत मजबूत है, और ये नहीं भूलना का पिछले साल 5 मैच चेस किए, 5 जीते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनका दम है। बट आई हैव टू गिव इट टू सचिन जोशी वंस अगेन। 2 विकेट, उन्होंने बैट्समैन को कंटेन किया, इकोनॉमिकल भी थे, प्रेशर पे बिल्डअप किया। ही इज ट्रूली टर्निंग आउट टू बी द CCL का चैंपियन खिलाड़ी सीजन आफ्टर सीजन। चलिए फिलहाल चलते हैं पॉपी के पास जो कि तैयार है कार्बन कमाल कैच के लिए, और देखते हैं विनर कौन होगा आज। और मुझे लगता है कि जो कार्बन कमाल कैच का जो विनर है उसका भी मजा अलग है कि कैसे आप कैच पकड़ते हैं और कैसे, क्योंकि आप भी मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत करते हैं। आइए आइए, आप एक बॉल फेंकिए ना, मैं कैच करके दिखाता हूं आपको। देखिए, करिए ना ऐसे, ये लीजिए, ये लीजिए। इतने सारे कॉन्टेस्ट प्राइजेस हो रहे हैं यहाँ पर, इट्स अनबिलीवेबल। आप पार्ले के बोर्ड पर शॉट मारिए, 25,000 रुपए मिल जाते हैं आपको, राइट? आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। मुझे सबसे बढ़िया नजर आया जो पार्ले जी पे, आप सीधे बल्ले से खेलिए, चौका लगाइए और कहीं ना कहीं आपको 25,000 रुपए, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। करके दिखाऊं आपको, ये लीजिए, क्या बात है, मतलब मुझे तो फुटवर्क बहुत बढ़िया नजर आया, फुटवर्क बहुत जबरदस्त नजर आया। पर देखिए, अगर विकेट्स की बात करें, जो विकेट का पतन हुआ, मुझे लगा शुरू में दबाव डाला, हालांकि बहुत आश्चर्य की बात है कि इस लाइनअप ने 8 गेंदबाजों का प्रयोग किया, पर शुरू में देखिए जो लाइन और लेंथ थी वो बहुत बढ़िया थी, और फील्डिंग की दाद देनी होगी। एब्सोल्युटली, फील्डिंग के साथ साथ ये भी हमें नोटिस करना है कि इनिशियल ओवर्स में ये बिल्कुल चौके छक्के मार नहीं पा रहे थे, सिंगल्स तक लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। या सचिन जोशी जो उन्होंने दूसरी सफलता ली वो बहुत बढ़िया थी। फिर ये मुझे लगता है ये जो उन्होंने थ्रो किया, ये ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन तैयार नहीं थे कि इतनी बढ़िया थ्रो होगी, और वहां पे दबाव और बढ़ गया, और ये ऐसा समय था सिद्धार्थ जब स्कोर था 30 रन पे 3 विकेट। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे क्लमजी शॉट्स भी मारे थे बैट्समैन ने, 1-2 बार चीकी सिंगल्स लेने की कोशिश भी की, जो बहुत लिविंग ऑन द एज फैक्टर होता है। आई एग्री विद यू कंप्लीटली, प्रेशर ऑफ टाइट बॉलिंग एंड ग्रेट फील्डिंग इज अ लीथल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, उसके बाद हालांकि अंत में भी विकेट का पतन हुआ, गेंदबाजी अच्छी नजर आई, पर जो मुझे लगता है जो फील्डिंग में जो एफर्ट था वो बहुत शानदार था, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो फील्डिंग का जो एफर्ट है, ये देखिए रन आउट काफी दूर रह गए थे, और हालांकि प्रयास किया पर वापस आना बहुत कठिन था। नहीं, एब्सोल्युटली, स्पेशली रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तालमेल प्लेयर्स के बीच में, आई कोऑर्डिनेशन बहुत
खराब था। इनफैक्ट कपल ऑफ टाइम्स मुझे लगा कि उनको दूसरे रन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, तभी उन्होंने दौड़ा था। बिल्कुल, राजीव पिल्ले मुझे लगता है जिस प्रकार उनका जो अर्धशतक था वो बहुत गजब का था। मतलब जिस प्रकार इनिंग को पेश किया, ये नहीं भूलना होगा, दूसरी तरफ विकेट भी गिरते रहे पर उन्होंने अपना जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो खोई नहीं। ही इज राइट नाउ द हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द डे। शब्बीर आहलूवालिया ने 69 बनाया था, तो 78 नॉट आउट पर ही इज राइट नाउ प्रोबेबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द डे। बिल्कुल, 148 में से अगर आप देखें जो 78 उन्होंने बनाए, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली 50% से ज्यादा स्कोर तो इन्होंने ही बनाया था। बट आई ट्रूली बिलीव कि इनके स्ट्रोक्स को देखकर मुझे यकीन है कि ये हार्डकोर क्रिकेटर है अंदर ही अंदर, एंड ही इज गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर्नामेंट एज वेल। और मुझे यकीन है कि मुंबई के खिलाड़ी अगर ये मैच देख रहे हैं, पिल्लई को जरूर ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि उनकी जो पारी थी वो एक बहुत निर्णायक पारी साबित हो सकती है स्थिति को देखते हुए। वो बहुत मतलब जबरदस्त पारी, क्योंकि अगर आप देखें दूसरी तरफ विकेट गिरे, टॉप स्कोरर नंद किशोर थे, वो जो साझेदारी थी वो मुझे लगता है फर्क काफी डाला सिद्धार्थ। या एब्सोल्युटली, क्योंकि एक खिलाड़ी जो फ्रंट रनर है उसको ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। अगर दूसरे एंड पर विकेट्स गिरते जा रहे हैं तो जो फ्रंट रनर बैट्समैन है वो भी ज़्यादा खेल नहीं पाता है, वो भी टेंटेटिव हो जाता है, डिफेंसिव खेलता है। बट नंद किशोर ने जो सपोर्ट दिया, बिकॉज ऑफ विच पिल्लई फ्रंट फुट पे खेलने लगे। जी हाँ, और अगर कार्बन कमाल कैच की आप बात करें तो मुझे लगता है कि पॉपी पे सारी नजरें रहती हैं कि कौन जीतता है, और वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है। और अगर आप देखें, मुझे लगता है पहले भी हमने देखा था, पहले मैच में भी, कि वो जो कैच था, जो विनर थे वो कितने खुश हुए। पर अगर आप पॉपी की बात करें, पूरा प्रयास करती हैं और ऐसा मतलब मजा आता है, वो भी अलग स्तर का है। हाँ, मैंने नोटिस किया कि पॉपी के बारे में बहुत बोल रहे हैं, 5-6 बार बोल रहे हैं, जरीन खान के बारे में बहुत